Hi, I am Syed Rashid from Ahledabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Today we are going to learning one of the next topic related to our chapter. So now the next topic we are learning as dispersion of light. Here dispersion of light, what is the meaning of dispersion of light? I want to explain. After that we will move on to the next topics. Okay, you might have seen rainbow you might have seen a rainbow form in the sky just after rain shower. It has fantastic with spectacular color appearing as a semicircular band of colors. In previous topics you have studied the behavior of light when it is refract through plane surface and curved surface such as lens. You also study the nature, position and relative size of the image formed by the lens. What happened to the light ray when it's passed through a transparent media bonded by plane surface which are inclined to each other? What is prism? That is red. I want to explain you something. Student, you might have seen the rainbow in the sky, and usually this sky is formed when we are observing few drops of showers, and this rainbow is very like beautiful, and it will like semicircular. It will like this, and it has different colors like this color and like that. Usually we have in rainbow 7 colors, and the 7 colors as web gear. Okay, this is the 7 colors we are usually observing in the rainbow, and I can write the names of the colors also here. V is nothing but violet, whereas I is indigo, and coming to the B consists of blue, G you know that green, and for Y we have yellow, and for O we have orange, and R is nothing but red. Now one question arises here, how the one color light, that is sunlight usually appears as white as we know. So how this white light split into various colors? A question arises. And we have also learned the refraction of light through lenses or transparent media. So what happens when light is passes through through lens? And after that topic, one more thing it here say, what is prism? What is prism? So for answering this question and to do a topic name as refraction through prism. Okay, prism is nothing, what is prism and how the refraction take place in the prism, and what are the angles it is getting when it is incidencing and refracting or reflecting. One more thing student, I'd like to explain you. Here we will get one more rays, and ray name is emergent. So emergent means, देखिए अभी हम इसमें और एक चीज़ हम सीखने वाले हैं. आपको तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे ही मालूम था. इमर्जिंग रेस क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे. अभी तो आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स समझने आ गया कि यूजुअली अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूँ को द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 लाइक वेब गियर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं आप. ठीक है, डिस्पर्शन का इस तरीके से मीनिंग होता. ना थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में हम पढ़ते हुए हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. ओके, लुक एट हियर स्टूडेंट, प्रिज्म इज रफली लाइक दिस. ओके, a prism is nothing but a prism is transparent media separated from the surrounding media by a least 2 planes surfaces which are inclined at a certain angle in such a way light incident on one of the plane surface emerge from the other plane surface. To understand the behavior of light when it is incident on the plane of a prism and passes into the prism, we need to define certain terms associated with prism. Hope you can listen the reading in English itself. Now coming to the explanation part in Hindi. देखिए प्रिज्म एक ऐसा यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ठीक है, जिसके पास बॉन्डेड है. उन्हें किससे बॉन्डेड है? 2 प्लेन सरफेस से. यहाँ पे भी एक प्लेन सरफेस रहेगा, यहाँ पे भी एक प्लेन सरफेस रहेगा इसमें, और वो जो सरफेस रहते हैं वो इंक्लाइंड रहते हैं. इंक्लाइंड इज नथिंग बट लाइक दिस. ओके, इस तरीके से रहते हैं. तो अब हम आपको जो है प्रिज्म के अंदर लाइट किस तरीके से पास होती, किस तरीके से निकलती, उसके लिए वो मालूम करने के लिए, वो जानने के लिए हमको सर्टेन टर्म्स पढ़ना है. उसके कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया.
डिस्पर्शन एंड प्रिज्म किससे कहते हैं। प्रिज्म का अगर डेफिनेशन पूछे तो आप सिंपल बोल सकते हैं, अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया separated from the surrounded media by at least two plane surfaces which are inclined at a certain angle, okay, इतना which are inclined at a certain angle तक आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, और अगर आगे भी आप लिखना चाहे तो बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिज्म के बारे में मैं क्या करता हूँ कि एक छोटी सी थियरी पार्ट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता हूँ। नाउ द टाइम टू लुक एट अ थियरी पार्ट ऑफ प्रिज्म ऑन योर स्क्रीन। So hope you have saw the theory part related to the prism. Prism के बारे में थोड़ा सा आप theory part देख लिए होंगे। Now consider a triangular glass prism. It contains two triangular base and three rectangular planes lateral surface. These lateral surface are inclined to each other. अब हम एक prism की बात कर लेंगे, ठीक है। और prism में usually क्या है, यहाँ पे two triangular base है और three rectangular lateral surfaces है, ठीक है। दो triangular base रहेंगे उसके और 3 उसके रेक्टेंगुलर बेसिस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लेट अस कंसीडर दैट ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम थोड़ा कंसीडर कर लेंगे। PQR क्या है, एक ट्रायंगल है, रिप्रेजेंटेड आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म वेयर इट रेसिस्ट ऑन द ट्रायंगुलर बेस, यानी कि जहाँ पे उसका ट्रायंगुलर बेस है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस अज्यूम दैट अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस PQ ऑफ अ प्रिज्म एट M एज शोन इन द फिगर। अभी आप देख सकते हैं, आप PQ जो सरफेस है, PQ सरफेस के ऊपर प्रिज्म के क्या हो रहा, इंसिडेंट लाइट क्या हो रही, इंसिडेंट हो रही। कहाँ पे इंसिडेंट हो रही, एट M, ठीक है। कहाँ पे, M की तरफ वो इंसिडेंट हो रही, यहाँ तक आपको समझना है। नेक्स्ट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द सरफेस at M, it's become a normal to the surface. The angle between the incident ray and normal is called the angle of incident. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा कि आपको जहाँ पे M है, ठीक है, M पे एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ कर लेना है। जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट हो गया, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम राइटिंग। और ये हमारा जो ये पार्ट हो गया वो क्या हो गया, नॉर्मल, NORMAL, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे I1 देख सकते हैं आप, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इफ इट विल आस्क यू इन 2 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इन प्रिज्म, प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता, या यूजुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमको पता ही है, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो आप सिंपल लिख सकते, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेस एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल के आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रे इज रिफ्रैक्ट एट M, इट्स मूव्स थ्रू प्रिज्म एंड मीट द अदर प्लेन एट N, फाइनली कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म। द रे विच कम्स आउट ऑफ द सरफेस PR एट N इज कॉल्ड इमर्जिंग रेज। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा ही ये M पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये क्या हो गई, इसके अंदर से ट्रैवल हो गई, ओके, मूव थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से ट्रैवल होके N के ऊपर क्या हो गई, वो निकल के आ गई, और वो सरफेस क्या था, PR सरफेस पे उन्हें इमर्ज हो गई। मैं यही बात आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था स्टूडेंट, कि हमारे पास एक और भी रहती है, इसको इमर्जेंस बोलते हैं या इमर्जेंट रे बोलते हैं, ठीक है, इमर्जेंट रे बोलते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़े चीज़ें और समझने होंगे कि रिफ्रैक्टिव रेस और इमर्जेंट रे में डिफरेंस क्या रहता, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, जो हमारी एक कोई प्लेन सरफेस है या स्पेरिकल सरफेस है या कौन सी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस रही है, ठीक है, जैसा ही यहाँ पे उसका इंसिडेंट रे होता है वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाती, ठीक है। रिफ्रैक्ट तो ये है, सेम केस यहाँ पे भी अगर कोई हो रहा तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन ये रिफ्रैक्टेड रे के साथ और एक रेस भी हम कंसीडर करते हैं, उसको इमर्जेंट रेस बोलते हैं। और डिफरेंस तो आप समझ सकते हैं, जो इमर्जेंट रेस रहता जो बिल्कुल ही आर पार हो गई उस तरीके से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें कुछ रिफ्रैक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस रहते, ठीक है, एक क्या रहता हमारे पास कि उसकी जो है बेंड होना है वो, और स्पीड चेंज होना है। तो यहाँ पे ना स्पीड चेंज होगी ना बेंड होगी, जैसी थी वैसी निकल जाएगी। ये इसके लिए हम एक रूल पढ़े थे, हम रूल फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। इन कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के रूल में हम एक चीज़ देखे थे कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेस पास होती है रिफ्रैक्ट नहीं होती है बिल्कुल ही, तो उस टाइप के रेस को हम इमर्जेंट रे कह सकते हैं, ठीक है।
ना उसके बाद द एंगल बिटवीन द प्लेन पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर के बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है, इसके और इसके बीच में जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल्स को मिला के हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जिंग रेज इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीविएशन। जो I2 है वो आपका एंगल ऑफ डीविएशन कहलाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, I2 इज नथिंग बट हियर एंगल ऑफ डीविएशन, ओके, एंड I1 इज नथिंग बट आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। वेराज और एक एंगल पढ़े थे हम, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हियर इज नथिंग बट PQ एंड PR पे ये जो दोनों ही एंगल मिला के दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डीविएशन टुगेदर कॉल्ड एज एंगल ऑफ लाइक प्रिज्म कह सकते। So this is about the prism and its terms. Now coming to the one part, we have one formula for the like refractive index of prism. The formula we can derive and this derivation has its own value. As of now I am just showing you the only the answer final formula how the refractive index of prism we can find, okay. So student, we have one formula. This formula you need to take copy down, and the name of the formula is nothing but I can write here, you can see refractive index of prism, okay, and this formula is given by n is equals to, okay, sine is nothing but here we have angle sine A plus d by 2 by sine, okay, sine again here we have ratio A by 2, okay. This is the formula for refractive index of prism. On the basis of this formula we can do one problem, okay, and here need not to confuse, here terms sine is n is nothing but refractive index, sine is nothing but ratio, okay, trigonometric ratio we have sine, A is nothing but angle of deviation you can say, like angle of prism you can say, and D is angle of deviation, 2 is constant as you know. So you need to copy this formula. On the basis of this formula we will solve one small problem with us. Now I am going to solve one problem, okay, related to this, okay. The problem is nothing but a prism with an angle A is equals to 60 produce an angle of minimum deviation of 30 degree, find the refractive index of the मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। दैट मीन्स उन्हें बोलना ये चाह रहा कि उसका जो प्रिज्म का एंगल है वो 60 डिग्री है और एंगल ऑफ उसका जो मिनिमम डिविएशन और एंगल ऑफ डिविएशन क्या है 30 डिग्री है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए बता रहा प्रिज्म का। नाउ कमिंग टू दिस सोल्यूशन, टू कैट द बॉडी ऑल ऑफ यू गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, सिंपल वी कैन से गिवन हियर इज नथिंग बट A is equals to 60 degree and D is equals to 30 degree. And if you want you can write that given angle of incidence A is equals to 60 and angle of minimum deviation D is equals to 30 degree, like this also you can write, okay. Now from formula, okay, from n is equals to, we have formula like sine A plus D by 2 by sine A by 2, okay. We have n is as it is, we have to find n is here nothing but refractive index, sine also as it is, in place of A what I will going to write like 60 and in place of D what I will going to write 30, okay, by 2 is as it is, again by sine is as it is, in place of A what I am going to write 60 or 30, come on, I am going to write like 60 because A is given as 60. Now next step, simple I can write here sine 90 by 2 by sine 60 by 2. Next step, here it is become like sine 45 by this become like sine 30. So for solving this problem student we need one knowledge requirement related to the trigonometry, like here sine 45 degree is nothing but 1 by root 2 and sine 30 degrees 1 by 2 already we know. So hope you can see this part of the board. Now I am continuing here. Here I am writing first like since
Here we are, make sure student, here we are doing applied max. This is not actually pure max, this is an applied max. Okay, so sin 45 degree is equals to 1 by root 2 and sin 30 degree is equals to 1 by 2. This step you need to write while you are practicing and while you are writing in examination also. So n is equals to, yeah, what in place of sin 45 degree I am going to write like 1 by root 2, and in place of 30 degree I am going to write like 1 by 2. So it's become n is equals to, now I am doing 1/4 fraction, 1 by root 2 into 2. This become like this, am I correct? So n is equals to, it's become 2 by root 2, but n is equals to, I can write root 2 by 2. Why I will write? Since 2 is nothing but root 2 into root 2. Okay, in place of 2 I am writing root 2 into root 2. So this root 2 as it is, root 2 get cancelled, and our final answer is nothing but n is equals to root 2. So you can say that the refractive index of the prism is root 2. Okay, hope you understood. Once again I am explaining, I am not explaining fast, just I am explaining step by step. जैसा आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे सर जल्दी जो बोलना है बोल दे रहे हैं, वैसा नहीं है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आप समझने आ गया होगा। एक सेकंड में स्टार्टिंग से फिर से समझा देता हूँ। देखिए गिवन ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बताया एंड डी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमारा फॉर्मूला है ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का एन इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डी बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। इसको मैंने बॉक्स में भी मार्क कर दिया है। एन इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, साइन एज इट इज है। इन प्लेस ऑफ ए व्हाट आई विल गोइंग टू राइट लाइक 60 डिग्री, दैट्स ओनली आई डिड। ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 60 डिग्री लिखूंगा, वही मैंने लिखा है। वेयर एज डी की प्लेस पे मैं लिखूंगा 30 डिग्री, वही मैंने लिखा है। बाई 2 एज इट इज रहेगा एज पर दी फार्मूला। उसके बाद साइन अपनी प्लेस पे है फार्मूले का। ए की प्लेस पे मैंने क्या लिखा है 60, 2 की प्लेस पे मैं एज इट इज 2 ही लिखूंगा, तो 2 ही था वो। तो 60 प्लस 30 कितना होता, 60 प्लस 30 90 लिख लिया है मैंने, बाई 2 एज इट इज, बाई साइन एज इट इज लाइक 60 बाई 2 इज एज इट इज, नो फर्दर कैलकुलेशन, 60 बाई 2 जैसे का वैसा ही है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 90 बाई 2 कितना होता, 90 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, हियर वी गॉट 1, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 हो गया। सेम 60 बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 0 का 0 30। तो मैंने वही वो स्टेप के बाद एग्जैक्टली मैंने वही लिखा था, साइन 45 बाई साइन 30 आया। हियर हम एक अप्लाइड मैक्स कर रहे हैं। वो अप्लाइड मैक्स क्या है, साइन 45 की प्लेस पे 1 बाई रूट 2 लिखना है, साइन 30 की प्लेस पे 1 बाई 2 लिखना है। सेम स्टेप मैंने वही किया। एन इज इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ 45 व्हाट आई डिड, आई रोट लाइक 1 बाई रूट 2। इन प्लेस ऑफ 30 व्हाट आई डिड, आई रोट 1 बाई 2, बट दिस 2 गोइंग टू दी fourth fraction, it's become like 2 by 1. So 1 we don't have any value, that's why I didn't wrote। 1 की वैल्यू नहीं रहती इसलिए मैंने नहीं लिखा था। तो 1 2 ज़ा 2, रूट 2 इंटू 1 1, तो 2 बाई रूट 2 हो गया हो। बट 2 की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ। तो ये रूट 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 2 हो गया। रूट 2 गेट कैंसल, एन इज इक्वल्स टू रूट 2। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, वन मोर थिंग आई लाइक टू से, डिस्पर्शन के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ रहते हैं। वो एक्टिविटीज़ आप खुद कर सकते हैं, आपके रीडर में से एक मरतबा आप पढ़ लीजिए, समझने आता। उसके एक्टिविटीज़ क्या है, डिस्पर्शन अगर आपको करना है तो 2-3 एक्सपेरिमेंट्स है। जैसा कि एक आर्टिफिशियल रहेगा, यानी कि रेनबो जो क्रिएट होता है, एक नेचुरल रहेगा, एक आर्टिफिशियल रहेगा। नेचुरल की अगर हम बात करेंगे तो वो तो आसमान में बनता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं। आर्टिफिशियल रेनबो वी कैन मेड लाइक डिफरेंट टाइप से कैसे है। सबसे पहले प्रिज्म है। प्रिज्म से अगर आप एक साइड से लाइट पास कराते हो तो दूसरे साइड से 7 कलर की लाइट निकलती। सेकंड थिंग, पानी रहता है आपका, वाटर में आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालने पे आपको 7 कलर्स डिस्पर्स होते रहते। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हम एक ट्रे ले लेंगे, ठीक है, और वो ट्रे की रहेगी, मेटल की रहेगी, उसमें पानी भर देंगे। पानी भर के उसके पानी के अंदर आईना, मिरर रखिए आप, इन सच अ वे के वो जो मिरर है इस तरीके से इंक्लाइन रहना और पानी यहाँ तक भरे जाना उसका। आई विल जस्ट ड्रॉ अ रफ डायग्राम हियर। देखिए ये हमारी मेटल ट्रे हमने ले लिया, यहाँ तक हमने पानी भर दिया था, ठीक है। पानी भरने के बाद मिरर आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। ये पानी के अंदर जो मिरर है हमारा, पानी के अंदर के मिरर पे आप लाइट इंसिडेंट कीजिए, तो ये फिर 7 कलर डिस्पर्स होते हैं आपको। तो ये एक आर्टिफिशियल रेनबो है। इस टाइप के आर्टिफिशियल हम बहुत बना सकते हैं। बट डिस्पर्शन का मेन मीनिंग क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट
into different colors of light is known as dispersion हम बोल सकते हैं। तो ये डिस्पर्शन को लेके कंप्लीट टॉपिक हमारे पास हो गई। कुछ और भी है तो मैं डिस्पर्शन का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम आगे एक टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसकी तरफ जाएंगे। ओके, होप यू अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट, prism, and we have done one problem also with prism. So in next part we will going to discuss few more logics of dispersion of light, then we move on to the next topics. So till then, take care, have a great time. You were watching Ahlebaib High School and Junior College YouTube channel. Thank you.